Good morning, everyone. So we have already started with internal transfer pricing. We have already started with divisional transfer pricing. Now we'll be heading towards the next part, and that is international transfer pricing. Now, see, when you transfer it internally within the same organization, we call it as divisional transfer pricing. When it is across the boundaries, it is called as international transfer pricing. Because we currently work in a multinational business model. Okay, so what do you mean by that actually? There is a demand for your final product. There is a raw material available in specific country, and the finished goods is getting produced in some other country. So raw material will be picked up from one organization, one company, from one country, and it will be transferred to another country to be converted into finished goods. That is basically done because the country where the production is going on, there can be a cheap labor with specialized skill like India. All we have is specialized labor. Plus cost of production is comparatively less. Same thing is with China. Why many branded products have a production unit in China? The simple reason is cost of production is very low because your labor is very cheap. So transaction between divisions of these multinational companies could involve transfer of goods, provision of services, and even intangible usage like copyright use, brand name use, technical know-how can be used across boundaries. Now, the major factor here is taxation. The major factor here is taxation because tax rates of different countries are different. So you will have to take into consideration the tax outflow when you plan things. So far, we were not considering taxation part because we were forming part of the same organization. Like the recent case which I'm talking about is Starbucks, which is known for their product. To generate high margin of the company, the pricing is very high. Although management claimed that business was good, the tax records reported losses. Investigation revealed that UK subsidiary paid its Netherlands unit 6% on sales as royalty for intellectual property, such as its brand and business processes. This 6% sale is a transfer price between the units. So that is also covered under the purview of tax. We'll solve one example, you'll understand what I'm talking about. A car manufacturing company has two manufacturing divisions in different countries. Division A in India manufactures engines for cars, and it has a capacity of 10,000 units each year. So that's the capacity. Variable cost of production is 8,000 per unit, and the division can sell 8,000 engines externally to customers within India for 11,000 per unit. There is an external sales possible which will lead to a contribution of 3,000 per unit. $10,000 units is the capacity. 8,000 are currently getting sold. 8,000 are currently getting sold, or 8,000 can be sold easily, fetching you contribution of 3,000 per unit. The other division B is in Italy that requires 5,000 engines every year to assemble them further into cars. So Italy, the company in Italy, the division B in Italy is manufacturing the finished product. So division A in India will supply engines to division B so that those engines will be converted into cars, and Italian division B will sell the car.
So this is international, this attracts international transfer pricing. 10,000 is the capacity, 8,000 is external sales, 5,000 is further needed. It purchases engines from a vendor in Italy at a price equivalent to 9,000 per unit. So this is a market price available. If Division B were to purchase these units from Division A, the transfer price would be 10,000. Since no selling expenses need to be incurred on internal sales, variable cost of such transfer is 7,000 per unit. That means even if there is a transfer, the contribution remains 3,000 per unit only. So Division A from India earns 3,000 per unit, whether the engine is sold in India or the engine is given to the Italian counterpart, Division B. Division A accepts the internal order from Division B and it will have to curtail some of its external sales. How much is the capacity? 10,000. How much you are selling externally? 8,000. How much is the further demand? 5,000. So you need 13,000. Now, if you want to produce 13,000, it's not possible because your capacity is 10,000. So what you're going to do is 5,000 will be produced for 5,000 will be produced for 5,000 will be produced for Division B. And instead of 8,000, you will be able to sell only 5,000 units in the Indian market. So the sacrifice will be 3,000 units. Are you understanding this? The sacrifice will be 3,000 units. Given that the tax rate is 30% in India and 40% in Italy, determine if the company will benefit overall if Division B purchases from India. Now that's the question. Determine if the company will benefit overall if Division B purchases from India. So the thought process is very simple. We will have to find out how much will be the profit of Division A. We will have to find out how much is the profit of Division B. See, the company is same. Division A is in India. Division B is in Italy. So profit of A and profit of B, both will affect the company's profit. Are you getting me? Now, if 5,000 units are to be transferred to Italian division, I will be left with only 5,000 to be sold in the Indian market. So can I say there will be loss of contribution on 3,000 units? So 3,000 into 3,000, 90 lakhs will be the sacrifice. Yes or no? 90 lakhs will be the loss of 90 lakhs will be the loss of contribution. And against that, 5,000 units will be sold to Italian division, which will give me same contribution of 3,000 per unit, 1 crore 50 lakhs. So this is income, this is expenditure. Still, I can see you earning 60 lakh rupees. Are you getting me? अच्छा, इसको अलग तरीके से समझना है आपको, नेट इफेक्ट देना है तो भी दे सकते हो. ध्यान दो, currently you are selling only 8,000 units externally in India. बराबर, 8,000 बना के 8,000 बेच रहे हो. इटाली वाला ऑफर एक्सेप्ट किया तो आप 10,000 बनाओगे.
अरे इटली वाला ऑफर अगर एक्सेप्ट किया तो आप 10,000 बना के 10,000 बेचोगे। पहले 8,000 बना के 8,000 बेचते थे, अब 10,000 बना के 10,000 बेचोगे, 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचोगे। किसी को भी बेचो 3,000 का कंट्रीब्यूशन तो आएगा। तो 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स विल नाउ गिव मी 3,000 रुपीज पर यूनिट। ये भी वही है जो तुम लोग कह रहे हो। देखो 3,000 का लॉस, 5,000 यूनिट्स का प्रॉफिट, सो नेट इफेक्ट इज व्हाट 2,000 इंजन का प्रॉफिट। सो 60 lakhs will be your revenue. Are you getting this? Relevant revenue is 60 lakhs. ये देखो उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिया है, but you know how this 60,000 was generated. Correct? You can write in the textbook if you want. Quantity lost, Indian market 3,000, additional quantity Italy 5,000, so net additional quantity is still 2,000 units. Correct? ये 2,000 का जस्टिफिकेशन दे रहा हूं मैं। पर कैसा है ना, ये कैलकुलेशन आपको हर बार काम नहीं आएगा। We had same contribution per unit 3,000 per unit इंडिया में, 3,000 पर यूनिट इटाली में, तो नेट इफेक्ट ले पाए। अगर कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता तो मुझे ये कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता 3,000 लॉस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हुआ, एंड 5,000 प्रोड्यूस्ड, उसका कितना कंट्रीब्यूशन आया। सपोज इटाली में मुझे 2,000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो दिस वुड बी 90 lakhs ओनली, दिस वुड बी 1 crore एंड द नेट इफेक्ट वुड हैव बीन 10 lakhs। आपको समझ में आ रहा है? तो ये नेट इफेक्ट, नेट कैलकुलेशन करना भी जरूरी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन द नेट फिगर। आज तुम लोग नेट फिगर 2,000 ले सकते हो एज पर द टेक्स्ट बुक, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेम। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग होता तो आपको इंडियन सब्सिडरी का लॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा और इटालियन सब्सिडरी का एडिशनल कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। द नेट इफेक्ट विल बी आइदर एक्सेस कंट्रीब्यूशन और रिडक्शन इन द कंट्रीब्यूशन। चलो अगर आप 60 लाख एक्स्ट्रा कमाते हो तो इंडिया का टैक्स रेट है 30%, सो 42 lakhs इज योर नेट गेन। समझे? अब इसमें इटाली का क्या हो रहा है, जस्ट थिंक फ्रॉम द इटालियन पर्सपेक्टिव, आई मीन इटालियन कंपनी पर्सपेक्टिव। उनको 9,000 में माल मिल रहा है, still they are buying it from their Indian subsidiary for 10,000, so they are paying 1,000 rupees extra. 1,000 rupees extra paid on 5,000 units, so they are spending 50 lakhs more. अच्छा 50 lakhs मोर मतलब 50 lakhs तो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, 50 lakhs एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी तो 50 lakhs से प्रॉफिट भी कम होगा, 50 lakhs से प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बचेगा। इटली का टैक्स रेट इज 40%, तो 50 lakhs अगर this is my net loss of contribution. समझ में आ रहा है? 10,000 में इटाली में मिल रहा है, 9,000 में इटाली में मिल रहा है, तुम लोग इंडिया से 10,000 में खरीदते हो तो 1,000 रुपए तुम लोग ज्यादा दे रहे हो 5,000 इंजिन पे, तो 50 lakhs यू आर पेइंग मोर। माई इटालियन डिवीजन इज पेइंग 50 lakh मोर, तो एक्सपेंस इंक्रीज बाय 50 lakhs, तो प्रॉफिट डिक्रीज बाय 50 lakhs। प्रॉफिट अगर 50 lakhs से कम होता है तो टैक्स सेविंग भी होता है, तो टैक्स सेविंग इज गोइंग टू बी 40%। तो 50 lakhs में से 40% यानी कि 20 लाख का टैक्स बचेगा, तो मेरा असली नुकसान सिर्फ 30 लाख का है। अब इंडियन सब्सिडियरी में मुझे हो रहा है 42 lakhs का प्रॉफिट और इटली में मुझे हो रहा है 30 lakhs का लॉस। दैट मींस इट इज स्टिल गिविंग benefit to the company to the extent of 12 lakhs. So division B should purchase engines internally from division A.
Division B should purchase engines from Division A. Have you understood this part? ये देखो इन्होंने working दिखाया है. We already discussed this. Just have a glance on the solution. You understood the net calculation also, no? Net calculation is always preferred क्योंकि हर बार contribution per unit same नहीं होगा आपका. Net calculation is always preferred because calculation आपका हर बार contribution per unit same नहीं होगा. तो contribution lost will be compared with excess contribution earned. Yes, absolutely. You can do that. But it will take time. See, as far as presentation is concerned, I have shown you presentation once. Okay. But अगर MCQ की ही बात करें तो तुम लोग को सिर्फ आंसर से मतलब है. That is why I'm giving you all shortcuts. मैं तुम लोग को लॉजिक भी बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को मैजिक भी बता रहा हूँ. So that you should know if contribution is different, this is what you are supposed to do. But if contribution per unit is same, ideally 8,000 के बदले 10,000 बना रहे हो, 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स का भी 3,000 रुपए मिल रहा है, 60 लाख रुपए तुम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे. You can always go for it directly. By the way, self-paced module का पता चला ना, you are supposed to give exam on the center. घर पे बैठ के नहीं दे सकते. So you will have to take this subject seriously now. चलिए, we'll start with the question. Next question, question number 1 on page number 12.27. ABC miners operate 2 divisions, one in Japan and the other in United Kingdom. Mining division is operated in Japan, which is rich in the raw emerald. The other division is in UK. It processes raw emerald into polystone fit for human wearing. So Japanese division is producing raw material and UK division is producing finished goods. That means naturally you need to transfer output of Japanese division to UK division. The other division is United Kingdom processing division. And the first one is Japanese division. Cost dekho. Japanese division 2,500 yen, fixed cost 5,000 yen, UK 150 pounds and 350 pounds. Several polishing companies in Japan buy raw emerald from local mining companies at 9,000 per carat. So can I say this is a market price available for raw material? Several polishing companies means जो काम यूके में होता है वैसे कुछ कंपनीज जापान से रॉ एमराल्ड खरीदते हैं 9,000 येन में. So this is a market price. Current foreign exchange rate is 50 yen is equal to 1 pound. Income tax rates are 20% and 30% in Japan and UK respectively. It takes 2 carats. This is important. It takes 2 carats for raw yellow emerald to yield 1 carat of polystone.
मतलब आपको एक फिनिश गुड्स बनाने का है यूके में, तो आपको 2 यूनिट ट्रांसफर करने पड़ेंगे जापान से। आपको अगर एक यूनिट बनाने का है यूके में, तो आपको 2 यूनिट ट्रांसफर करने पड़ेंगे जापान से। तो यूके में अगर इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 1000 फिनिश यूनिट्स, 2000 will be the transfer from Japan to United Kingdom. Polish emerald sell for 3,000 pounds per carat. So this is selling price. So this is selling price, definitely selling price. When I say it has to be selling price UK. Compute the transfer price for 1 carat of raw emerald transferred from mining division to the processing division under 2 methods. 200% of full cost and market price. 200% of full cost and market price. Okay. And then 1000 carats. एक मिनट पहले पार्ट 1 सेटल कर लेते। पार्ट 1 में व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? पार्ट 1 में दे आर आस्किंग फॉर ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस पर कैरेट। First, 200% of total cost. Okay, so if you see the question, 2,500 variable and 5,000 fixed. 2,500 variable and 5,000 fixed. 7,500 Japanese yen is your total cost. Correct? This is variable cost, this is fixed cost. Multiplied by 2. So Japanese yen 15,000 is the transfer price. Japanese yen 15,000 is the transfer price. Second. What is the second method given? Market price. Market price is 9,000 yen. Second one is market price, which is 9,000 yen per carat. Copy this. This is the first part of the question. एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, 15,000 येन और 300 ब्रिटिश पाउंड और 180 ब्रिटिश पाउंड। पाउंड में भी पूछा है ना, तो लिख दो, बेटर रहेगा। आपके पास डेटा हो तो अच्छा है। आंचल, दिस इज द फर्स्ट टेबल, दिस इज द फर्स्ट डेटा। इसके पहले वाले टेबल मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए बनाया था, उसमें कुछ लिखना नहीं है। फर्स्ट यू कॉपी दिस पार्ट।
Okay, is it done? Chalo, what is asked in the second part? 1,000 carats of raw emerald are mined by Japanese division and then processed and sold to UK processing division. Compute after-tax operating income of each division under both transfer pricing methods in point number 1. Okay, सॉल्व करेंगे इसको. अब एक चीज याद रखो, 1,000 carats of raw material will deliver 500 carats of finished goods. So this is Japanese data and this is UK data. प्रोड्यूस करोगे, प्रोसेस करोगे 1,000, प्रोड्यूस हो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होगा 500, तो बेचोगे 500 कैरेट्स. आर यू गेटिंग मी? और सेलिंग प्राइस यूके के लिए 3,000 पाउंड दिया हुआ है. तो प्रॉफिटेबिलिटी पूछा इन लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जापानीज कंपनी यूके, जापानीज डिवीजन यूके डिवीजन, ट्रांसफर प्राइस इज 200% ऑफ टोटल कॉस्ट. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना. पहले 200% ऑफ टोटल कॉस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कैलकुलेशन करेंगे. दिस विल बी टोटल फॉर द कंपनी. यस बच्चा लोग, मैं बना लूं पहले फटाफट, या साइमल्टेनियसली करना है? जल्दी क्विकली बोलो, फटाफट बोलो. यू वांट मी टू डू इट फर्स्ट? साइमल्टेनियसली करते. चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. ये दूसरा सेगमेंट होगा व्हेन ट्रांसफर प्राइस इज मार्केट प्राइस. तो ऐसा एक टेबल रेडी करके रखो. इसके पहले का 1, इसके पहले का 2 ये रहा.
रिया पार्ट 1 ले लिया आपने? ओके चलिए. So are you guys ready with the table? Standard format. We will have to start with sales. Japanese division is a transferer. UK division is a transferee. So first line is always for external sales, then transfer, so that we can get the total here. फिर subtract करेंगे cost, उसमें वेरिएबल, फिक्स्ड और ट्रांसफर कॉस्ट भी आएगी. Total revenue will be marked as A, total cost will be marked as B, and as usual, our profit will be A minus B. This is in Japanese yen, this is in UK pound, Japanese yen, UK pound. ठीक है, स्टार्ट करें. अच्छा, ये जो भी सब चल रहा है वो 1000 कैरेट्स के लिए, 1000 कैरेट्स ऑफ रॉ मटेरियल. एम आई राइट? चलो, अब एक्सटर्नल सेल्स जापानीज डिवीजन का तो है नहीं, बट हाउ मच इज द ट्रांसफर प्राइस? How much is the transfer price? 200% of transfer cost, total cost. So 15,000 येन. ओके, मैं सबसे पहले पर यूनिट निकाल लेता हूं, बाद में आराम से उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा. एंड इफ दिस इज 15,000, if this is 15,000 yen, my total revenue will be 15,000 yen here. Variable cost will be 2,500, fixed cost will be 5,000. Japanese division कहीं से कुछ नहीं ले रहा है, 7,500. And balance 7,500 will be the profit. We are not going to stop here because we have tax information given. तो हमको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. टैक्स का इफेक्ट भी हमको देना पड़ेगा. So if 7,500 is your profit, Japanese division का टैक्स लायबिलिटी क्या है? टैक्स परसेंटेज इज 20%. Tax at the rate of 20% is 1,500. So this will be 6,000 profit after tax. But this is per carat. Quantity is 1,000 carats. So PAT will be Japanese yen 60 lakhs or 50 yen is $1, is £1, no? So 1,20,000 pound. ये हुआ प्रॉफिट जापानीज डिवीजन का. एनी डाउट हियर? अरे जल्दी बोलो भाई.
क्लियर। बेचने निकलोगे, यूके डिवीजन का सेलिंग प्राइस इज £3,000। यूके डिवीजन कहीं कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो £3,000 ऐसा ही रहेगा। अच्छा, यूके डिवीजन के लिए 150 एंड £350 वेरिएबल एंड फिक्स्ड। 150 and 350 is variable and fixed. Correct? Now, $15,000 में you transferred 15,000 में you transferred 1 कैरेट, बराबर। उसकी वैल्यू कितनी थी? 300 pounds. And plus, it is also told to us that if you are producing a finished product, if you are producing finished product, two, if you are producing a finished product, 2 carats will be required. Each carat is transferred at 300. So for me, the transfer price will be 600. The cost will be 600. देखो, ये भी पर यूनिट निकाल रहा हूं, ये मेरा पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट होना चाहिए। अब 1 यूनिट कैरेट यूके में बनाने के लिए मुझे 2 कैरेट, एक फिनिश गुड्स यूके में बनाने के लिए मुझे 2 कैरेट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। 1 कैरेट कॉस्ट मी 15,000 जापानीज येन, यानी कि 300 पाउंड्स। तो 2 यूनिट्स विल कॉस्ट मी 600 पाउंड्स। 600 पाउंड्स विल बी द कॉस्ट फॉर मी। So this comes to 1100. My profit is 1900. यूके में टैक्स बेस क्या है? 30%। तो this was 20% here. So यूके में 30%, 1900 into 30%, 570 will be subtracted. 1330 per carat of finished goods. अब याद रखना, यहां पे 1000 मत लेना, क्योंकि 1000 कैरेट ट्रांसफर करोगे तो 500 फिनिश गुड्स बनेंगे। 6,65,000, 6,65,000 pounds, 6,65,000 pounds, और जापानीज येन भी लिख सकते हो। £6,65,000 यूके बेस्ड है ना, अपन कंपेयर कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ध्यान से पढ़ना इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 150 15,000 मीन्स 300 पाउंड्स, और एक नहीं 2 यूनिट कंज्यूम होंगे तो 600 पाउंड्स। तो नेचुरली इधर कवर हो ही रहा है ना, ये 50 और ये 500 और ये 2, तो 1000 इज टेकन केयर ऑफ। क्योंकि 1000 भेजोगे तो 500 फिनिश गुड्स बनेगा, 500 बिकेगा। तो आपको येन में भी आंसर निकालना है, तो यू कैन राइट इट हियर। 332.5 lakhs दोनों निकाल के रख दिया हमने। आई होप दिस इज क्लियर बच्चा लोग। अरे यस और नो? आगे बढ़े, अब नया कैलकुलेशन करते हैं। चलो,
यहां पे ट्रांसफर प्राइस विल बी मार्केट प्राइस, यानी कि 900 येन या फिर 180 पाउंड्स फॉर जापानीज subsidiary Japanese yen, for UK it is British pound. एक्सटर्नल सेल्स तो वैसे भी नहीं होगा। अच्छा, यूके का एक्सटर्नल सेल्स विल बी इंटैक्ट, वो कभी चेंज नहीं होगा। ट्रांसफर प्राइस क्या है? ट्रांसफर प्राइस इज 9,000। ओके, सो 9,000 यहां पे आएगा, सो दिस विल बी 9,000। देखो, ट्रांसफर प्राइस की वजह से कॉस्ट चेंज नहीं होती, तो कॉस्ट विल रिमेन 7,500 ओनली। 9,000 minus 7,500, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,500। 20% टैक्स अगर माइनस करना हो तो 300 माइनस होगा। 1,200 Japanese yen will be the profit after tax, multiplied by 1,000, 12 lakhs will be the profit। और 12 lakhs का प्रॉफिट मतलब सिर्फ 24,000 पाउंड, बिकॉज रेट इज 50। ये समझा ना आपको? यूके डिवीजन का एक्सटर्नल सेल्स तो कभी होगा ही नहीं। 150 pounds and 350 pounds will be unchanged। एक यूनिट 180 में ट्रांसफर होता है, तो वी नीड 2, सो 360 विल बी द ट्रांसफर प्राइस। 860 will be the total cost। $3,000 minus 860, 2,140 is your profit before tax। 30% टैक्स लायबिलिटी है, 642। 1,498 will be your profit per carat। एज यूजुअल 50 से मल्टीप्लाई हो, 500 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1,000 ट्रांसफर करोगे तो 500 फिनिश गुड्स बनेंगे। सो दैट गिव्स मी 749 pounds as profit, और $374.5 Japanese yen। ये समझा? देख लो पूरा टेबल, समझ लो इसको, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। इज इट डन? अब आपको टोटल अगर निकालनी है तो फाइनल टोटल विल बी डिफरेंट।
क्योंकि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. सी 3000 will remain same. 3000 will remain same, but transfer pricing will be different, which we don't consider. Correct? तो 3000 pounds का सेल then नहीं कर सकते because this is in yen, this is in pounds. So final कॉलम छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. I'm just simply following the format. टोटल प्रॉफिट अगर चाहिए तो टोटल प्रॉफिट आपको इधर मिल जाएगा. समझा? आज तक हम लोग टोटल कॉलम बना सकते थे बिकॉज वी वर डीलिंग विथ द सेम करेंसी. अब करेंसी चेंज हो रही है तो इतना निकाल के छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है. यू कैन ऑलवेज डू इट, जरूरत नहीं है. उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट निकालने को बोला है, 1000 कैरेट का निकाल दिया. समझ में आया? So let's move ahead with the next part, next question. Case study. Quicklink manufactures mobile phones at its plant in Karnataka, India. The company also has marketing division worldwide, one of which is in Paris, France. The division in France imports 50,000 mobile phones annually from the manufacturing plant in India. Given below is some information about the divisions in India and France. Number of mobile phones sold by Indian division to French division, 50,000. Indian income tax rate 35%, French income tax rate 40%, import duty rate paid by French division 15%. Full manufacturing cost per unit 12,000. Selling price net of marketing and distribution cost in France in equivalent to Indian rupees 18,000. Comparable market price based on similar imports in France 15,000. So that's the market price. The Indian and French tax authorities allow for transfer prices only that between full manufacturing cost of 12,000 per unit and a comparable market price 15,000. Naturally, variable cost से कम हो नहीं सकता, 15,000 के ऊपर दे नहीं पाओगे. 15,000 is a market price, no? I hope you remember the range. No, there is no need to go for total column. Shrija, जापानीज कैलकुलेशन येन में है, यूके का कैलकुलेशन पाउंड्स में है, तो टोटल की जरूरत ही नहीं है ना, खत्म कर देंगे इसको. डिवीजन वाइज पूछा है, डिवीजन वाइज देके खत्म कर दो. अगर इन्होंने टोटल कॉलम पूछा होता तो मुझे या तो येन को पाउंड में कन्वर्ट करके दोनों पाउंड ऐड करने पड़ते, या फिर पाउंड को येन में कन्वर्ट करके दोनों येन ऐड करने पड़ते. समझे? ओके. हाँ, सो मार्केट प्राइस का रेंज हम लोग ने डिस्कस किया था. वेरिएबल कॉस्ट से कम हो नहीं सकता और मार्केट प्राइस से ज्यादा मैं होने नहीं दूंगा. तो मतलब 15,000 के ऊपर फ्रेंच कंपनी एग्री नहीं करेगी, 12,000 के नीचे इंडियन एग्री नहीं करेगी. दैट्स व्हाट द इनकम टैक्स अथॉरिटी इज सेइंग. 12 से 15 के बीच में होना चाहिए. डन. Import duty paid by French division is based on the price at which the phones are transferred, the transfer price. Import duty is deductible expense, obviously.
for calculating income tax in France. मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं 12,000 में ट्रांसफर करूंगा मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस है कि मैं 12,000 में ट्रांसफर करूंगा या फिर 15,000 में ट्रांसफर करूंगा. दोनों ऑप्शंस है. दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द मार्केट प्राइस. ओके, ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास है. ओके, लेट मी गो फॉर द फर्स्ट वन. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. TP is equal to variable cost. TP is equal to variable cost, and all this calculation is being done for 50,000 units. Correct? So transfer price 50,000 into 12,000. So it will be 6,000 lakhs. Correct? Minus cost. Minus cost. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 12,000 है. तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. बराबर. अरे यस और नो. This whole calculation is done for Indian division. Correct? Let's go for statement of profit. Where transfer price is market price and you are transferring 50,000 units. So transfer price will be 50,000 into 15,000, 7,500 lakhs minus cost. Now, if I talk about cost, there will be a manufacturing cost which we have already calculated in the previous calculation, 6,000. So my operating profit is 1,500 lakhs. Operating profit is 1,500 lakhs. तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा. इंडियन टैक्स 35%. 1,500 into 35%. 525 lakhs is your tax liability. So 975 lakhs is your profit after tax.
बराबर. This is what we have for Indian division. Copy कर लिया? Copy this. Done. Now, this is profitability of Indian division. A similar calculation is to be done to know the profitability of the French division. Because जब तक हम लोग के पास वो डेटा नहीं आ जाता, हम लोग MCQ सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So we have just now completed profitability calculation of Indian division. For French division, I'll go columnar. For French division, I'll prefer going for columnar presentation. So far, we have done calculation exclusively from Indian or Indian companies, Indian divisions point of view. Now we'll be going for
French division statement of profit when transfer price is variable cost, when transfer price is market price. And this is happening for 50,000 units transferred by Indian division to French division. So naturally, we'll have to start with sales. They have clearly told us selling price is 18,000. Selling price is 18,000. So in any case, sales of French division will be 9,000 lakhs. खुशी समझा 18,000 क्या था? हमने जो फ्रेंच डिवीजन को भेजा है आइदर 12,000 में या 15,000 में, फ्रेंच डिवीजन ने वो बेचा है 18,000 में. So 18,000 is a selling price for the French division minus cost. Minus cost. Minus cost. बोलिए कॉस्ट का क्या है? मतलब वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद 18,000 में बेच रहा है नेट ऑफ कॉस्ट. वरना शायद 18,500 होगा, 500 रुपए का पर यूनिट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा, वो माइनस करके इन्होंने दिया है तो अच्छा है, वरना हमको माइनस करना पड़ता. सबसे पहले we'll have to go for production cost. अच्छा, is there any production cost first of all? चेक कर लो. Are we spending anything on production? No. तो हमको तो सीधा ट्रांसफर प्राइस ही उठानी पड़ेगी. और ट्रांसफर प्राइस उठाओगे तो पहले कैलकुलेशन के हिसाब से 6,000 और दूसरे कैलकुलेशन के हिसाब से 7,500 आएगा. बराबर? ये समझा सबको? अरे पहले कैलकुलेशन के हिसाब से 6,000, दूसरे कैलकुलेशन के हिसाब से 7,500 लैक्स. उसके बाद आएगा एक और खर्चा जो फ्रेंच डिवीजन को आएगा, 15% कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी. 6,000 लाख का माल खरीदा है, 15% and 7,500 into 15%. This will also be added to the cost structure. This takes the total cost to 6,900 lakhs, 8,625 lakhs. 8,625 lakhs. Total cost is B. Total cost is B because sales is A. 2,100 lakhs होगा आपका प्रॉफिट और यहाँ पे होगा 375 lakhs. अब इसमें से कटेगा टैक्स. फ्रांस में क्या है टैक्स रेट? 40%. $840 lakhs. $225 lakhs. 1,260 lakhs. This is profit after tax.
समझे? So now if you want to know the total profit for the company, zero plus 1260 lakhs, 975 plus 225 lakhs. So this will be 1260 lakhs. India, France, India, France. 975 plus 225. 1200. So 12 lakh 60,000 and 12 lakhs is what you have. ये हुआ आपका initial table which gives you the information about profitability. Just have a glance on it, check कर लो इंडिया फ्रांस करके हमने total profit भी निकाल लिया कंपनी के लिए. Correct? Even if import duty is deductible expenses, this line is not given. Our solution would have been the same. Yeah, absolutely. It's a common sense, no, Priya. French division is importing something. Import duty is applicable. And that actually plays a vital role when it comes to transfer pricing, international transfer pricing. You have to take care of taxation, you have to take care of transfer pricing, you have to take care of import duty. क्योंकि अब तक हम लोग ये नहीं सोच रहे थे because हम लोग एक ही कंट्री में रह के एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर कर रहे थे. अब कंट्री में थोड़ा चेंज है, टैक्स रेट में भी थोड़ा चेंज है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी विल आल्सो कम इनटू पिक्चर. सो माय नेट प्रॉफिट विल बी आफ्टर डिडक्टिंग those taxation effects and import duty effects. In fact, और कोई चार्ज अगर और कोई टैक्स अगर लेवी करती है तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली आई एम सीकिंग फॉर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट लाने के लिए क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? हर वो कॉस्ट जो गवर्नमेंट को पे करनी, प्लस माई प्रोडक्शन कॉस्ट, माई प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो तो आएगा ही, वो तो पहले भी आता था, ये एडिशनल है. ठीक है, इतना सब डेटा है अपने पास, तो चलो एमसीक्यूज हैंडल कर लेते हैं. कैलकुलेट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इंडियन डिवीजन व्हेन ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सारे आंसर्स अपने पास है बच्चा लोग. सेकेंड एमसीक्यू, calculate after tax operating income of French division when transfer price is at full cost. कितना था? 12 पॉइंट. अबे सारा वर्किंग नोट में पड़ा हुआ है भाई. ये बाबू, आर यू गेटिंग दिस? पॉइंट नंबर 3, calculate after tax operating income of Indian division when transfer price is market price. Indian transfer price is market price. ये डेटा देखना है आपको. कितना लोगे? 9.75. अरे निकाला तो है बाबू. Calculate after tax operating income. After tax operating income of French division. ये कितना है भाई? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दिया, दान 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 करके एमसीक्यूज निकल रहे हैं. Which method of transfer pricing is more beneficial for the company as a whole? एक में 1260 मिल रहा है अगर मैं कॉस्ट पे ट्रांसफर करूं तो, दूसरे में 12 लाख मिल रहा है. अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ए इज बेटर, राइट? फैंटास्टिक. अभी देखो क्या पूछना शुरू कर दिया इन लोगों ने. ये जरा
टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ध्यान दो। Assume that Indian division is charging French division full manufacturing cost of 12,000 per unit. If the manager of the Indian division wants to increase transfer price to 12,001 per unit, 1 रुपए से कॉस्ट बढ़ेगी, 1 रुपए से इनकम बढ़ेगा। बाबू लोग, 1 रुपए से इनकम बढ़ेगा, 1 रुपए से इनकम बढ़ेगा, ये मानते हो? Instead of transferring it at 12,000, if you transfer it at 12,001, 1 रुपए से इनकम बढ़ेगा। Under this, that is, what will be the impact on income tax to be paid by the Indian division? एक बात बताऊं, 1 रुपए से इनकम बढ़ेगा, 1 रुपए से सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, 1 रुपए से रेवेन्यू बढ़ेगा, 1 रुपए से रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट बीइंग सेम, 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा, 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा, 35% टैक्स आएगा, 0.35 से टैक्स इंक्रीज होगा, बराबर? सबसे पहले बताओ मुझे, इतना एग्री करते हो क्या? सच मानो तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं। क्यों बताऊं? 1 रुपए से अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज ही होगी, और इंक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है, मैंने डायरेक्टली ठोक दिया। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन स्कॉलरशिप, शॉर्टकट। हाँ, इंक्रीज वाले 2 ऑप्शन होते ना तो हमको सोचना पड़ता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट इट क्विकली। थॉट प्रोसेस जाननी जरूरी है। 1 रुपए से सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, 1 रुपए से रेवेन्यू बढ़ेगा, 1 रुपए से रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट बीइंग सेम, 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा, 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा तो 35% टैक्स के हिसाब से 0.35 से टैक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो बढ़ने वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास। यू डोंट इवन नीड वर्किंग नोट। ए स्मार्टीज, आगे बढ़ो। अज्यूम दैट इंडियन डिवीजन इज, श्रीजा तेरा डाउट खत्म हो गया बेटी? यू रेज्ड हैंड, बट आई थिंक मेरा वो शॉर्टकट देख के तूने वापस, you were also thinking on the same ground by mistake, no problem. Question number 7, assume that the Indian division is charging French division full manufacturing cost of 12,000 per unit. If the manager of Indian division, listen, if the manager of Indian division wants to increase transfer price by 1 rupee, वापस 1 रुपया बढ़ेगा, what will be the impact on the income tax and import duty? सबसे पहली बात, ट्रांसफर प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगी तो फ्रेंच डिवीजन की कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ेगी, कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ेगी। 1 रुपए से कॉस्ट बढ़ेगी तो 0.15 से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, तो नेचुरली 1.15 से कॉस्ट बढ़ेगी। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इनकम टैक्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी? सबसे पहले तो डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, ये बाबू, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता ना। तो क्या होगा बताओ? इंक्रीज इन इनकम टैक्स। अच्छा, ये लोग अभी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहे। 1.15 से कॉस्ट बढ़ी, टैक्स रेट कितना है? 40%। ए, कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 1.15, प्रॉफिट डिक्रीज बाय 1.15, so 40% tax decreased by 0.46। सारे फैक्टर्स लिख दिए मैंने। ये लोग ने सडनली इनकम टैक्स पूछ लिया, ओके। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स भी कम होगा, तो डिक्रीज इन इनकम टैक्स ये हो सकता है, एंड इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी, करेक्ट ना? इंक्रीज इनकम टैक्स तो पॉसिबल ही नहीं है बादशाह लोग, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गिर गए, डिक्रीज इन इनकम टैक्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट। अबे कॉस्ट बढ़ेगी तो इंपोर्ट ड्यूटी डिक्रीज कैसे होगी? वो तो बढ़ेगी ना। आई होप यू गाइज आर केपेबल ऑफ गेटिंग क्विक आंसर्स नाउ।
मुझे बताओ, आर यू गाइस कंफर्टेबल? आपका दिमाग चल रहा है क्या सुबह सुबह, या सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन रहे हो? आपको किसी की दिक्कत हो तो मुझे बोल दो। इफ यू नो वांट एनीथिंग लेट मी नो। आर यू गाइस कंफर्टेबल? यस, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8। Assume that Indian division is charging French division full manufacturing cost of 12,000 per unit. If the manager of the if the manager of the Indian division wants to increase transfer price by 1 rupee, okay, wait. इंडियन डिवीजन का रेवेन्यू बढ़ेगा, फ्रेंच डिवीजन की कॉस्ट बढ़ेगी। That is, transfer price is proposed to be increased by 1 rupee. What will be the impact on overall profit of quick link per rupee 1% of transfer price? Okay. 1 रुपए से रेवेन्यू बढ़ेगा, 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सब्सिडरी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 0.65। अच्छा, उधर 1.15 से कॉस्ट बढ़ेगी, उधर 1.15 से कॉस्ट बढ़ेगी। वन पॉइंट वन फाइव से कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा 0.69 से। करेक्ट। यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो कैन आई से डिक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 0.04%? डिक्रीज वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठोक दो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। समझा? बाकी सारे ऑप्शन तो इंक्रीज वाले। इंक्रीज कहाँ से होगा प्रॉफिट में? कॉमन सेंस है। 1 रुपए से सेल्स बढ़ेगा, 1 रुपए से सेल्स बढ़ेगा, 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा, 35% जाएगा, तो ये राइज इन प्रॉफिट इंडिया के लिए। उधर 1 रुपए से कॉस्ट बढ़ेगी, उस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, तो 1.15 विल बी द राइज इन द कॉस्ट, 1.15 विल बी द फॉल इन द प्रॉफिट, तो पोस्ट टैक्स विल बी 0.69। 0.69 से प्रॉफिट गिरेगा, 0.69 से प्रॉफिट गिरेगा, 0.65 से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवरऑल डिक्रीज इज 0.04। और डिक्रीज वाला तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो ठोक दिया सीधा ये। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, जब इंक्रीज इंक्रीज एंड नो इम्पैक्ट वाली तो सीन ही नहीं है रे। डिक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है, तो ठोक देने का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9। Assume that Indian division is charging French division full manufacturing cost of 12,000. Manufacturer of Indian division wants to increase the transfer price to 13,000, मतलब 1,000 से राइज। What will be the impact? What will be the impact on overall profit? What will be the impact on overall profit? सबसे पहली बात, मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर इंडियन डिवीजन ट्रांसफर प्राइस बढ़ाती है, अगर इंडियन डिवीजन ट्रांसफर प्राइस बढ़ाती है 1 रुपए से, तो यहाँ पे 1 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1.15 से कम होगा। प्लस इसका टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 35% है, इसका टैक्स लायबिलिटी 40% है। मतलब किसी भी महीने में इट इज ऑलवेज ओवरऑल डिक्रीज ओनली। क्यों मगजमारी कर रहे? नहीं समझे? इधर कितने से इधर कितने से डिक्रीज था? 0.04 ना।
1 रुपए से 0.04, तो 0.04 इंटू 50,000 करो। 1 रुपए से बढ़ा तो 2,000 से बढ़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 1,000 करो। 12,000 का 13,000 कर रहे हो ना, 20 लाख का इंक्रीज, 20 लाख का डिक्रीज। और वैसे भी आपको इतना तो पता है कि 1 रुपया ट्रांसफर करता हूं तो 1 रुपया कॉस्ट है, लेकिन 15% इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से जो इंपैक्ट कॉस्ट पे आएगा ना इंडिया के, उससे 15% ज्यादा इंपैक्ट आपका आएगा फ्रेंच डिवीजन पे। तो यहां पे 1 रुपया बढ़ा दिया तो वहां पे 1.15 का असर होगा। तो यहाँ पे 1 रुपया बढ़ना मतलब 0.65 बढ़ना, और वहां पे वन प्रॉफिट गोज अप बाय 0.65, और वहां पे 1.15 मतलब 0.69 कम होना। मतलब हर एक केस में 1 रुपया अगर बढ़ाता हूं तो 0.04 से प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कम होता है। मैंने 1,000 रुपया बढ़ा दिया, 12,000 का 13,000 कर दिया, 0.04 इंटू 1,000, 40 रुपए से बड़े प्रॉफिट कम होगा। 50,000 यूनिट्स बेचते हो तो 20 लाख। वैसे भी 20 लाख में किसको इंटरेस्ट था, अपने को तो पता है ना, डिक्रीज है तो डिक्रीज पे डाल देने का, सोचने का नहीं ज्यादा। हाँ, 2 डिक्रीज होते तो मैं अमाउंट के पीछे लगता। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर क्विकली। स्कॉलरशिप वाला, स्कॉलरशिप एग्जाम दिया है क्या तुम लोगों ने कभी? अपने लाइफ का पहला कौन बनेगा करोड़पति, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ABCD ABCD। तो जब नो इम्पैक्ट नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है डिक्रीज, भाड़ में गई वैल्यू, इसको देखने का ही नहीं। हाँ, 2 डिक्रीज होते ना तो फिर वैल्यू पे फोकस करो, लेकिन एक ही डिक्रीज है, मुझे पता है डिक्रीज होगा, एक ही डिक्रीज है तो सीधा ए। अरे समझा। Based on your analysis in question number 6 to 9, should Indian division increase transfer price to 13,000 per unit above the full manufacturing cost of 12? है तुम लोग पूछते हो, अबे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स है हम लोग, क्या चिंदी चमाटगिरी पूछते हो हमको? नो, I hope you guys are getting enough confidence to crack this paper. It's just a hype. Self-paced, 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 self-paced and all that. दिमाग लगाओगे, शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो फटाफट आंसर आएगा, समझे? अरे मैं तो 1 रुपया अगर दिया ना, 1 रुपया भी बढ़ गया तो भी ना ही बोलूंगा, क्योंकि 1 रुपया इधर सेलिंग प्राइस बढ़ती है तो उधर 1.15 से प्रॉफिट कम होता है, तो इट इज ऑलवेज मोर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 1,000 का बढ़ा दो, 2,000 से बढ़ा दो, 5,000 से बढ़ा दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ए, ये भी रहेगा। तो ये उन्होंने वर्किंग वर्किंग दिया समझाने के लिए। हैव अ ग्लांस ऑन द notes once again and let me know if you have any doubt.
चलिए नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 12.39. G Limited is transferring division and R is receiving division. G division is transferring, R division is receiving. R has a demand for 20% of G's production capacity, which has to be first met as per the company's policy. मतलब अगर कैपेसिटी 100 यूनिट्स का है जी का, तो मुझे सबसे पहले 20 तो पहले देने ही पड़ेंगे आर को, और बाकी 80 आई कैन सेल इन द मार्केट. State with reasons which division, G or R, enjoys more advantage in each of the following independent situations, assuming there is no inventory built up. Okay. पहला कैटेगरी, G Limited transfers at full cost. G का प्रोडक्शन लेवल 60 है. अब 60 में से सबसे पहले 20 मुझे देना पड़ेगा आर को, बराबर. प्रोडक्शन लेवल 60 है, मुझे 20 कंपल्सरी. ऐसा अज्यूम कर लो कैपेसिटी 100 यूनिट्स है. कैपेसिटी 100 यूनिट्स है, मतलब आर को 20 यूनिट्स तो देने ही होंगे. अच्छा, इधर यू प्रोड्यूस किया 60, एक्सटर्नल डिमांड 40, तो आर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी, आर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी, आर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी मैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूं. डिवीजन आर को तो खैर कॉस्ट तो पूरी पे करनी पड़ी, लेकिन डिवीजन जी को मौका मिला है प्रॉफिट कमाने का. सो डिवीजन जी, बिकॉज इट कैन अर्न मोर प्रॉफिट एक्सटर्नली, इट कैन अर्न मोर प्रॉफिट एक्सटर्नली. समझा? दूसरा सिचुएशन, ट्रांसफर इट एट मार्केट प्राइस. 100 की कैपेसिटी है, 80 बना रहे हो, 80 में से 20 तो मुझे किसी भी हालत में देने पड़ेंगे. 20 तो मुझे किसी भी हालत में आर को देने पड़ेंगे. 60 बेच सकता हूं, 60 ही बेच रहा हूं. और इस बार तो मैंने मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किया है, मतलब मार्केट से भी प्रॉफिट आएगा, इंटरनल ट्रांसफर से भी प्रॉफिट आएगा. अगेन जी इज द बेनिफिशियरी. आपने ट्रांसफर किया मार्जिनल कॉस्ट पे, आपने ट्रांसफर किया मार्जिनल कॉस्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर किया, मतलब कॉस्ट एकदम मिनिमम चार्ज की होगी. 100% पे काम करते हो, 100% पे काम करते हो, मतलब 100 यूनिट्स बनाते हो, 20 आर को देने के बाद भी मार्केट में बेचने के लिए 80 है, तो मतलब यू हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट. इस बार फायदा हुआ है रिसीविंग कंपनी को, बिकॉज इट हैज गॉट द मटेरियल एट वेरिएबल कॉस्ट. इधर फुल कॉस्ट थी, मतलब फिक्स कॉस्ट भी पे करनी पड़ी थी. अब तो वेरिएबल कॉस्ट पे मिला, मतलब असली बेनिफिशियरी कौन है? आर. एंड फाइनली मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करते हो, 100 बनाते हो, 20 देना है आर को, तो एक्सटर्नल बेचने के लिए हाउ मच यू आर लेफ्ट विथ टू सेल एक्सटर्नली? 80. योर एक्सटर्नल डिमांड इज 90, सो यू आर सैक्रिफाइसिंग इट. 100 प्रोड्यूस करने के बाद, 20 आर को देने के बाद मेरे पास बचते 80, मेरी डिमांड है 90, मतलब मुझे, मैं ये कर्टेल नहीं कर सकता, तो मुझे एक्सटर्नल सेल्स कर्टेल करना पड़ेगा. बट फर्क किसको पड़ता है? वहां से भी मार्केट प्राइस आने वाली थी, इधर से भी मार्केट प्राइस ही आएगी, मतलब यहां पर भी बेनिफिट जी का है. गो थ्रू दिस एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. Go through this and tell me if you have any doubt.
Okay, raise your hands. If you are getting something at marginal cost, that means you are getting it at a cheaper rate. So that means what? The benefit is with R, no, or now. In point number 4, Parth is saying in point number 4, there will be a contribution lost of 10. नहीं ना, तू मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है मेरे भाई. तो तू ट्रांसफर करेगा तो भी मार्केट प्राइस पे, मार्केट में बेचेगा तो भी मार्केट प्राइस पे. यू आर सैक्रिफाइसिंग 10 यूनिट्स, बट दोस 10 यूनिट्स आर गिविंग यू मार्केट प्राइस ओनली, व्हिच यू वुड हैव एनी व्हिच वी गॉट. तो तेरा कोई नुकसान नहीं है पार्थ. नहीं समझा अभी भी. पार्थो, समझा ना. 100 यूनिट्स बनाए, 20 दिए आर को, मार्केट में बेच सकता हूँ 80. बेचना चाहिए था 90, बेचा 80. कितने नहीं बेचे? 10. किसको दिए? आर को. लेकिन दिए तो मार्केट प्राइस में ना. मार्केट प्राइस किसी से भी आया, अपने को क्या लेना देना. मेरे को मार्केट प्राइस से मतलब है. अगर ट्रांसफर प्राइस मार्केट प्राइस से कम होती तो नुकसान होता. यहाँ पे फुल कॉस्ट चार्ज कर रहे हो बॉस, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. वेरिएबल प्लस फिक्स चार्ज कर रहे हो मतलब तुम लोग ने अपना कॉस्ट निकाल लिया, तो जी का बेनिफिट है ना. यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट चार्ज कर रहे हो, मतलब फिक्स कॉस्ट यू आर नॉट चार्जिंग. सो आर इज गेटिंग मटेरियल एट अ लीस्ट प्राइस. दैट इज व्हाई आर इज बेनिफिशियरी. पार्थ शाह, समझा अभी. 1 में फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों है, 3rd में सिर्फ वेरिएबल है. ए बच्चा लोग, आर यू गाइस क्लियर विद द फर्स्ट वन? आर यू गाइस क्लियर विद द फर्स्ट वन? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैं फिलहाल पेंडिंग रख रहा हूं. थोड़ा रेडी होना जरूरी है उस क्वेश्चन के लिए. विल सॉल्व दैट क्वेश्चन एट द एंड. एंड में सॉल्व करेंगे, अभी कुछ नहीं. आई विल बी सॉल्विंग इट, डोंट वरी. मैंने वैसे भी कुछ छोड़ा नहीं आज तक. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. Centurion Company operates a pulp division that manufactures food pulp or wood pulp for use in the production of various paper goods. The following information are available. Selling price is 210, variable cost is 126, contribution is 84, fixed expenses is based on 1 lakh kgs, 54 per unit. Net income is 30. देखो, मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट से मतलब है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे वैसे भी मैं रिलाई नहीं करता. My variable cost is 126. The Centurion Company has just acquired a small company that manufactures paper cartons. This company will be treated as a division of Centurion with full profit responsibility. The newly formed carton division is currently purchasing 10,000 kgs of pulp every year from a supplier at 210, less 10% quantity discount. So 210 with quantity discount बोलने का क्या मतलब है? सीधा बोल देने का था ना 189 में खरीदता है. नॉनसेंस. घुमा फिरा के क्यों बात करते हैं? 189 में खरीदते हो मार्केट से. So this is market price. Centurion President is anxious that the carton division begins purchasing its pulp division if an acceptable transfer price can be worked out. अब सबसे पहली बात, how much is the production cost? 126. Will the transferor be ready to transfer it below 126? No. Will the transferee accept transfer price above 189? No. तो मतलब रेंज क्या हुआ? Just between you and me.
126 to 189, 126 to 189. Correct? Point number one. If the pulp division is in position to sell all its pulp outside customers at a normal price of 210 per kg, will the manager of carton and pulp division agree of transfer price for the next year? Explain with reasons. क्या बोलते हैं? Pulp division will not pay you, or other carton division is not going to pay you more than 189. Pulp division can sell it in the market for 210. You tell me, will the transfer take place at 210? No. मैं 200 and 189 के नीचे तू 189 के ऊपर तू देगा नहीं. फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट ना. कुछ भी करो, 54 लाख का फिक्स कॉस्ट तो इनकर करना ही है. कुछ भी कर लो, 54. आप 10,000 बना के बेचो या 12,000 बना के बेचो या 5,000 बना के बेचो, 54 लाख की जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आके रहेगी. सो इट इज इररिलेवेंट. समझा खुशी? जब मैं खर्च ही नहीं कर रहा हूं तो ट्रांसफर प्राइस में क्यों कंसीडर करूंगा? एम आई इनकरिंग दैट कॉस्ट स्पेसिफिकली फॉर दिस? नो. देन व्हाई शुड आई कंसीडर? प्रोडक्ट बनाने के लिए 126 खर्चा आता है. दिस इज नॉट 54 per unit actually. It is calculated based on 1 lakh. That means it is ideally 54 lakhs. सिर्फ उसको per unit में convert करने के लिए 54 करके दिया. You are not actually spending 54 on each unit. Are you? No. Then why should I consider? मेरा एक यूनिट 126 में ही बनेगा. So 126 is the only cost that is incurred by me for an additional unit. So why should I consider fixed cost for decision making? अभी समझा? Convinced? Good. So what is the conclusion? No transfer. बराबर ना? Second situation. Assuming that pulp division is currently selling only 60,000 kgs of pulp each year to outside customer at 210, will the managers agree to mutually transfer 10,000 kgs in the next year? बोलिए. You think and tell me. Idle capacity. So tell me. $189, they will agree. The transfer will take place. 189 तो 189, अपने को क्या है, उसमें भी तो प्रॉफिट मिल रहा है ना. मैं बना रहा हूँ 60,000 kgs, और अगर 10,000 किलो बनाऊंगा तो भी फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी 126 की.
तो 126 की वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी। 210 मार्केट में मिलता है, मेरे को तू 189 दे रहा है, वो भी चलेगा। आई एम स्टिल गेटिंग अ प्रॉफिट। आई विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। समझा? अरे यस और नो? सिचुएशन नंबर 3, if the outside supplier of the carton division reduces its price to 177, oh my god, the outside supplier of the carton division reduces price to 177, मतलब 189 से भी नीचे आ रहे अंकल, 177 में मटेरियल अवेलेबल करके दिया है। Will the pulp division meet its price? Explain. If the pulp division does not meet the price of 177, what will be the effect on profit of the company as a whole? मुझे तो अब भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो 126 ही खर्च कर रहा हूँ। तू 210 के बदले 189 चार्ज कर, 189 के बदले 177 दे दे मुझे। सच बोलूं, 126 के ऊपर कुछ भी चलेगा मेरे को। All the only cost I'm incurring is 126. तो 126 का माल अगर 177 में भी कोई लेता है तो भी मुझे 51 का फायदा हो रहा है। सो माय पोटेंशियल प्रॉफिट इज 51 पर यूनिट। तो 10,000 किलो अगर लेके जाएगा तो भी 5,10,000 का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अरे समझे? अबे ठंडे पड़ गए क्या? एक काम करो, इसका सोल्यूशन दिया है आपको, तो मैं जानबूझ के सोल्यूशन में से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट सम प्री कंसीव्ड डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, बट अभी जब डिस्कशन हो गया है तो तुम लोग रीड कर सकते हो। सी पेज नंबर 12.49 पे है। जल्दी जल्दी, पेज नंबर 12.49 पे पूरा सोल्यूशन दिया है, एक बार पढ़ लो। और हम लोग ने कितना शॉर्ट में डिस्कस के लिए कर लिया वो भी सोचो। ये सब इतना सब लिखा पड़ी, फॉर्मूला वार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट खत्म कर देना आंसर।
खुशी, ध्यान से सुनो। सिचुएशन 3 में बाहर वाला 177 में माल भेज रहा है, बराबर। मार्केट प्राइस इज 210, मार्केट प्राइस इज 210, 10% डिस्काउंट मिल रहा था, 189 में अवेलेबल था, वो इट हैज फर्दर गॉन डाउन टू 177। मतलब ये कि मेरी ट्रांसफरी डिवीजन खुशी मुझे 177 से ज्यादा अब पे नहीं करेगी, बराबर। So at the most I can get 177 from my transferee division. मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि the cost incurred by me on that your quantity is 126 per unit only, जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, because I'm still within my capacity limits. अर्णव सुन ध्यान से, उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि you are exceeding your capacity limits. That means definitely there is some idle capacity. Idle capacity है तो मैं और प्रोड्यूस करूंगा तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही आएगी। 126 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 177 कहीं से मिल रहा है 51 रुपीज का, तो फिर भी प्रॉफिट दिख रहा है। तो 10,000 यूनिट्स पे 51 के हिसाब से 5,10,000 विल बी माय एडिशनल प्रॉफिट। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। Question number 4. APC Limited has two divisions, Division X and Division Y, with full profit responsibility. Division X produces component JEX, which is supplied to both Division Y as well as external customers. Division Y produces product called Jextine. X transfer करता है Y को और X can sell the product externally. Am I right? Division Y produces a product called Jextine, which incorporates component JEX. Which incorporates component JEX. For 1 unit of Jextine, 2 units of component JEX and materials are used. 1 यूनिट जेक्सटीन का बनाने के लिए 2 यूनिट जेक्स के चाहिए। डिवीजन Y प्रोड्यूसेस जेक्सटीन, जिसके लिए मुझे 2 यूनिट जेक्स के भेजने पड़ेंगे। Till date, Division Y has always bought JEX from Division X at 50. So this is my transfer price, existing transfer price. Since the lower price at which the JEX could have been bought is 52 per unit. मतलब ये मार्केट प्राइस है। आपको समझा? वापस समझाता हूं। Division X produces JEX, ट्रांसफर करता है Y को, सेल करता है ओपन मार्केट में। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस है 50, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्राइस 52 है। समझ में आया? X charges the same price for component JEX to both division Y and external customers. अच्छा, अब एक्सटर्नल कस्टमर को भी सेम प्राइस चार्ज करता है, मतलब हमारे लिए 52 is just a market price. अपनी सेलिंग प्राइस सेम होगी। Division Y has received proposal from a new supplier who has offered to supply component at the rate of 47 per unit for next 3 years. Manager of Division Y requests Manager of Division X to supply JEX at 47 per unit. Manager of Division X is not ready to reduce the transfer price since the divisional performance is based on
प्रॉफिट मार्जिन रेशियो ऑफ द डिवीजन, उसका क्रेडिबिलिटी, उसका if performance evaluation will get affected. But the fact of the matter is 47 is the price offered. चलो मुझे बताओ, सबसे पहले आपको ये समझाएगा, have you understood this much? Jex is getting manufactured by X. It is transferred to division Y. It can be sold externally. I'm transferring it at 50 and I'm charging 50 to outside market also. आउटसाइड मार्केट में 52 का रेट चल रहा है, आउटसाइड मार्केट में 52 का रेट चल रहा है, आई एम स्टिल ट्रांसफरिंग इट एट 50. फिर भी मार्केट में कोई पैदा हो गया है जो 47 रुपीज में ट्रांसफर करना चाहता है, तो डिवीजन वाई हैज रिक्वेस्टेड मी कि भाई 50 मत ले, 47 ले, 50 मत ले, 47 ले. दैट्स द ऑफर गिवन. मुझे बताओ सबसे पहले यहां तक क्लियर है क्या? इसका मतलब मुझे सबसे पहले इवैल्यूएशन करना पड़ेगा जेक्स की कॉस्ट का. अगर कॉस्ट 47 से कम होने वाली है तो आई मे स्टिल गो फॉर द प्रपोजल. लुक एट द कॉस्ट स्ट्रक्चर. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कंपोनेंट जेक्स. एक सबसे पहली बात, जेक्सटिन को भूल जाओ, इसकी तरफ ध्यान मत देना, स्क्रीन पे नजर रखो. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जेक्स का एक यूनिट मार्केट में भी 50 में बिकता है. 12 रुपया मटेरियल का खर्चा, 16 रुपया लेबर का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2 रुपया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 रुपया. जरा टोटल लो, 12 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 4, 34. मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 34 है. 50 रुपए में बिकता है, 34 में बनाया हुआ माल, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 16. फिक्स कॉस्ट एनुअल इज 40 lakhs. एनुअल सेल्स डिमांड इज 3 lakhs. एनुअल एक्सटर्नल डिमांड इज 3 lakhs. मतलब मैं 5 लाख यूनिट्स कैपेसिटी है तो 2 लाख ट्रांसफर कर ही सकता हूं. यस, यहां तक क्लियर है? ओके. जेक्सटीन का क्या है? जेक्सटीन कैन बी सोल्ड फॉर 180. और क्वेश्चन में बोला है कि 1 यूनिट ऑफ जेक्सटीन नीड्स 2 यूनिट्स ऑफ जेक्स. तो 50 में 1 यूनिट ट्रांसफर होता है, यहाँ पे 2 यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो माई मटेरियल कॉस्ट विल बी 100. 50 into 2 जेक्स. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इतना समझा है क्या? बोलो. इतना समझा है? ओके. फिर अदर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन लोगों ने दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे दी. तो अपनी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफर प्राइस? 22 प्लस 13 प्लस 7. 42 per unit is variable cost of जेक्सटीन. 100 रुपया मटेरियल कॉस्ट, 100 रुपया मटेरियल कॉस्ट. तो 142 विल बी द टोटल कॉस्ट पर यूनिट. 180 में से माइनस किया तो आपको मिलता है 38 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट दी है 1,20,000. एक्सटर्नल डिमांड है, कैपेसिटी इज 1,50,000. Calculate the present profit of each division and the company as a whole. Existing profit निकालना है. करेक्ट. अब सबसे पहली बात,
120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स जेक्सटीन के बनाने, तो 240 यूनिट्स जेक्स के ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और 5 लाख में से 2,40,000 अगर ट्रांसफर कर दिया तो 2,60,000 मार्केट में जाएगा। यू गाइस एग्री विथ मी? आर यू गेटिंग मी? 1,20,000 यूनिट्स जेक्सटीन के बनाने के लिए 2,40,000 जेक्स लगेगा। 5 लाख कैपेसिटी है, 5 लाख में से 2,40,000 अगर मैं प्रोड्यूस करके ट्रांसफर करता हूं तो बेचने के लिए मेरे पास बचेगा सिर्फ सिर्फ 2,60,000। So all those factors need to be considered. So calculate present profit of each division. ध्यान से सुनो अभी। आप एक्सटर्नली बेचोगे 50 में, ट्रांसफर करोगे 50 में, बराबर। मैं आपको एक बेसिक कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो हमको बाद में डिसीजन लेने के काम आएगा। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई, ठीक है। डिवीजन वाई एक्स के लिए दो ऑप्शंस है, एक्सटर्नल एंड ट्रांसफर। इसके लिए एक्सटर्नल सेल्स ही ऑप्शन है, वो ट्रांसफर थोड़ी करेगा किसी को। तो सेलिंग प्राइस इज 50, उसमें तो कभी कोई चेंज नहीं होगा, और इसकी होगी 180 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेने जाऊं मैं तो ये है 34 पर यूनिट। लेकिन अगर मैं इंटरनल ट्रांसफर की बात करूं तो वाई वुड आई स्पेंड 4 रुपीज? 4 रुपीज तो मुझे आउटसाइडर्स को देना पड़ेगा। इफ आई सेल द प्रोडक्ट एक्सटर्नली आई एम स्पेंडिंग 4 रुपीज, इफ आई एम सेलिंग इट इंटरनली अपने डिवीजन को ट्रांसफर करने के लिए एडवर्टीजमेंट करूंगा मैं? नहीं। मतलब यहाँ पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 30, यहाँ पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 30, और इसकी फिक्स कॉस्ट है 140, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 142, 142, ऐसा 2 माइनस कर लेता हूँ। सो 16 रुपया कमा रहा हूँ, 20 रुपया कमा रहा हूँ, 180 माइनस 142, 38 कमा रहा हूँ, and that's my contribution per unit. That's my contribution per unit. मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। 2,60,000 बेच सकते हो, 1,20,000 जेक्सटीन बनाने के लिए 2,40,000 जेक्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब इट विल बी ट्रांसफर्ड। तो बाकी बचा हुआ 2,60,000 ही आप बेच पाओगे। सो 2,60,000 इंटू 16, 41,60,000। This will be 48 lakhs, 38 into 1,20,000,
45,60,000. So कंपनी के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन will be total of these three. That comes to 1,35,20,000 माइनस फिक्स कॉस्ट करना पड़ेगा. इसकी फिक्स कॉस्ट 40, इसकी 20. प्रॉफिट मांगा है इसलिए मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहा हूं. डिसीजन मेकिंग के लिए तो फिक्स कॉस्ट आएगी नहीं. 75,20,000 75,20,000 होगा आपके लिए टोटल कंट्रीब्यूशन. इनफैक्ट मैं एक काम कर सकता हूं. I'll take this on a different line. This is total profit. और यहाँ पर मैं इंडिविजुअल प्रॉफिट भी निकल के रख देता हूँ. How much is the fixed cost here? 40 lakhs and 20 lakhs. Okay. 40 lakhs कहीं से भी माइनस करो. And this will be 20 lakhs. तो इसका प्रॉफिट 25,60,000 और इसका प्रॉफिट कॉमन फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद 49,60,000. So 49,60 plus 25,60 is 75,20,000. अरे खुशी, आर यू टेकिंग अ डिसीजन दैट यू आर कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पहले समझ लो ना जो चल रहा है सामने. आर यू टेकिंग एनी डिसीजन हियर? व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? गेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल्स माइनस कॉस्ट. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. Why overthinking is required? Opportunity cost and all. Opportunity cost कब consider करते हैं? When you are considering only one option and the other one is sacrificed. You are considering all three options separately and you're not taking any decision. You're simply calculating profit. So it is sales minus total cost. Listen to me when I'm explaining things. Hey, बाकी लोग ये समझ में आ गया क्या? We are just calculating profit. We are just calculating profit. We are not doing anything else. क्या मांगा है क्वेश्चन में? Calculate present profit. तो जो नहीं बिका उसके बारे में क्यों सोचने का? जो बिका वही प्रॉफिट देगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कंसिडर ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट. पॉइंट नंबर 1 सबको समझाया गया. पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. इतना मस्त बना दो ऐसे. सेलिंग प्राइस तीनों का. अच्छा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मतलब होता है ट्रांसफर प्राइस. 4 रुपया कम होगा बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड व्हेन यू ट्रांसफर इट इंटरनली. बिकॉज खुद के कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है. आउटसाइडर के लिए जरूरत पड़ती है तो दैट विल बी recorded here. 16 per unit external contribution, 20 per unit internal transfer contribution, 38 per unit is the finished goods final contribution of the other division, finished goods producing division. So quantity structure is also available. We have discussed that in detail. So this is what the profit is. This is the amount of profit that I am earning right now. This is the amount of profit which I am earning right now. Any doubt here? खुशी, क्लियर हो गया? कंफ्यूजन? गायब. चलो ठीक है.
Okay. Next part. Analyze the impact on total annual profit of each division and the company as a whole if division Y accepts the offer of the new supplier. अब नए सप्लायर की बात करते हैं. No, there is no discouragement. I'm not scolding you. I'm afraid of you getting distracted. You're not understanding one thing. Since day one, I'm telling you one thing. Just listen to my lecture. Let's understand everything. And then you ask, I'm afraid that you may get distracted. Don't take me wrong. I'm worried that your overthinking will take you in some different direction, which I don't want because I'm explaining everything here. Are you understanding this? I'm not scolding you or I'm not discouraging you. But at the same time, if the same thing is getting repeated from your side, what will I do? I hope you understand that. Yes, Sunidhi. Question में नहीं बोला होता तो भी you can always make that assumption. Question में नहीं बोला होता तो भी you can make that assumption. Selling and distribution cost is generally required for outsiders, not for internal transfer. Khushi, is this point clear, beta? Don't take me in a wrong sense. I'm not worried because you're asking me doubts. I'm worried because you're not listening to me and you're on a different thought process. And since day one, this is happening. Are you getting me? Second point, analyze the impact of analyze the impact on annual profit. And the company, okay, analyze the impact on total annual profit of each division and the company as a whole if division Y accepts the new offer of the new supplier. Chalo, I'm giving you 2 minutes to think about it. 47 पे आपको ऑफर मिला है. 47 पे अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो, 47 पे अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो, ध्यान से सुनो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट ट्रांसफर्ड, अगर आप 47 वाला ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या असर होगा ये पूछा है. ओके, टेक 2 minutes एंड गिव मी द आंसर. खुशी, इज दिस क्लियर नाउ? आपको समझा क्या मांगा है? आर यू ओके नाउ? डोंट गेट एंग्री ऑन मी. द इंटेंशन वाज नेवर रॉन्ग. आई होप यू गॉट दैट. हाँ, और पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन लेट मी कंप्लीट द होल सोल्यूशन देन. चलिए, टेक 2 minutes.
Well done, Arnav. Very good. प्रियांक थोड़ा सा सोच. Why will cost of y will be reduced by 3? थोड़ा सोचना. चलो, पे अटेंशन यहाँ. ध्यान से. हम फिलहाल externally you are earning 16 per unit. Perfect, Khushi. Well done. You are earning 16 per unit. You are earning 16 per unit externally. ट्रांसफर करोगे तो 20. अब ट्रांसफर तो होगा नहीं. डिवीजन वाई विल बाइट फ्रॉम द ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में 47 में मिल रहा है. 47 में मिल रहा है मतलब 47 इंटू 2. बच्चा लोग 94 will be the cost. So cost goes down by, variable cost goes down by 6 rupees. So your contribution will be 44. Your contribution will be 44. You guys agree with me? प्रियांक तू एक चीज भूल गया बेटा. 1 unit of Gentex require 2 units of Jex. समझा? But good, at least you are thinking about it. 3 रुपया सेव होगा 1 यूनिट पे. मैं 2 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, 6 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. वैसे भी 47 per unit into 2, 94 will be the buying cost. 94 will be the buying cost. तो यार आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए से कम होगी, कंट्रीब्यूशन 6 रुपए से बढ़ेगा. अब ध्यान से सुनना. डिवीजन एक्स अब पूरा 3 लाख बेच सकता है एक्सटर्नली, जो उसकी डिमांड है. 16 रुपया मार्केट से कमा लेगा. वाई लिमिटेड 1,20,000 बेचेगा और 44 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमा लेगा. ये अपना डायरेक्ट आंसर है. So company's total contribution will be 100.8 lakhs. बॉस फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी. फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी. फिक्स कॉस्ट अगर सेम रहेगी तो प्रॉफिट दिखाई देगा 40.80 lakhs. अभी हो रहा है 75,20,000. कंपनी को होगा प्रॉफिट 40.80 lakhs. What is the conclusion without confusion? Will not accept the offer. अरे ओवरऑल तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना. Have you understood this, everyone? अब अगर इससे रिलेटेड देखो, एक अगर आप इनका सॉल्यूशन देखोगे ना तो इन्होंने एकदम डिटेल में कैलकुलेशन करके दिया है. एज यूजुअल मैंने शॉर्टकट सिखा दिया आपको, क्योंकि एमसीक्यूज अगर आता है तो तुम लोग को डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ भी मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन को बेस बनाया है. एंड एंटायर कैलकुलेशन वाज डन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन. टोटल सेल्स लोगे 2,60,000 के हिसाब से, 2,40,000 के हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 2,60,000 की, 2,40,000 की और 1,20,000 के माइनस करोगे. ये सब करने से अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव क्वांटिटी गिव्स मी द आंसर. यार क्विकली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 40 एक्सटर्नल सेल्स ही होगा, ट्रांसफर नहीं है. तो मैं यार 2,60,000 पे रेस्ट्रिक्ट क्यों करूं. मेरा डिमांड तो 3 लाख का था, 3 लाख बेच दूंगा. 3 लाख बेचूंगा तो 16 के हिसाब से 48 लाख तो मिलेगा ही. अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 44 हुआ है क्योंकि कॉस्ट कम हो गई, तो 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. और अगर आपको नेट इफेक्ट निकालना है तो वो भी निकाल के देता हूं. पहले ये समझा आपको. तो आपका रिवाइज कंट्रीब्यूशन आएगा 108
100.8 लाख, 60 लाख की फिक्स कॉस्ट तो इंटैक्ट है, तो 40 लाख 80,000 प्रॉफिट आएगा, जबकि आप कमा रहा हूं मैं 75 लाख 20। 7520 माइनस 40 लाख 80, आपका प्रॉफिट 34.4 लाख से कम हो रहा है। ये भी ढूंढ सकते हो आप। कैसे पता है? देखो, आपने ये कंट्रीब्यूशन खोया, सो 48 लाख आपका लॉस है। एक मिनट एक मिनट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं? आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट, जल्दी बताओ। हाँ, आई लॉस दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40, लेकिन यहाँ पे 40,000, तालीस तालीस 2,60,000 के बदले 3 लाख बेच सकता हूं, तो 40,000 एक्स्ट्रा बेच सकता हूं, तो 16 इंटू 40, 6,40,000 ज्यादा कमा लिया मैंने, तो 6,40,000 से बढ़ेगा, 48 लाख से कम होगा। सो नेट इफेक्ट इज स्टिल लॉस ऑफ 41.6, लेकिन यहां पे 6 रुपए से वेरिएबल कॉस्ट कम होने की वजह से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा 6 रुपए से, इंटू 1,20,000 करो, 7,20,000, 7,20,000 से आपका बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन। नेट इफेक्ट निकाल के देखना, वही आता है 34.4। नहीं समझा? 30,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स, सॉरी 40,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स 16 रुपया देंगे, 1,20,000 जेक्सटीन के यूनिट 6 रुपया सेव करके देंगे, तो अपना टोटल एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा 13,60,000। लेकिन बाबू लोग, ये तो एक्स्ट्रा कमाओगे, लेकिन ये कमा नहीं पाओगे ना, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो 48 लाख का लॉस एंड 48 लाख का लॉस और 13.6 का प्रॉफिट, नेट इफेक्ट इज 34.40। ओरली भी निकाल सकते थे, हमने तो ओरली निकाला वैसे। बच्चों समझे कि नहीं? अगर मेरा इन्वेंट्री 2 लाख पड़ा रहेगा तो उस पर भी मुझे कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा ना सर? नहीं, देखो इन्वेंट्री है तो रेलेवेंट कॉस्ट तो है नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। इन्वेंट्री है तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट तो है ही नहीं, इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। तो सोचने का ही क्यों? व्हाई वुड इट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन? मेंटेनेंस कॉस्ट दी होगी तो, वरना नहीं। मेंटेनेंस कॉस्ट का सेविंग आ जाएगा इफ यू आर यूजिंग योर इन्वेंट्री। हाँ हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं ना, तो स्टोरेज कॉस्ट वगैरह यहाँ पे तो पिक्चर में ही नहीं आएगी। हाँ, अब एक काम कीजिए, क्या पूछा है सेकंड नंबर में? एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन टोटल प्रॉफिट इफ वाई एक्सेप्ट्स ऑफर ऑफ द न्यू सप्लायर। और तीसरे में पूछा है, इन द चेंज सिनारियो डिस्कस व्हाई द टॉप मैनेजमेंट वुड इंटरवेन एंड एडवाइज सुटेबल ट्रांसफर प्राइस फॉर चेक्स। अब कॉमन सेंस है यार, अगर ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, अच्छी तरह से नाक खुल के सुनो, अगर ट्रांसफरी डिपार्टमेंट 47 में बाय करने लगा तो कंपनी को 34.4 लाख का लॉस हो रहा है, तो कंपनी वुड बी इंटरेस्टेड in settling issues between X and Y. So basically range of transfer price has to be decided. अरे आप समझ रहे हो? तो range can be 30, which is variable cost, and 47, which is market price. अरे आपको समझा? ये समझा? अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा थॉट प्रोसेस भी आ सकता है, यू मे एग्री फॉर 46 ऑल्सो, क्योंकि क्या है ना, मैं 16 रुपया मार्केट से कमा लूंगा,
that is only if the quantity is minimized. That is only if the quantity is minimized. मैं 40,000 यूनिट्स और बेच सकता हूं इन द ओपन मार्केट, तो 16 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से आएगा। तो 30 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट, 16 का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो मार्केट से आएगा, 46 में दे सकता हूं मैं अप टू फर्स्ट 40,000 यूनिट्स। उसके बाद आई विल स्टार्ट चार्जिंग यू 47। गो टू पेज नंबर 12.51। ये देखो कैसा दिया है इन लोगों ने, इतना लंबा करके दिया है, ये सबकी जरूरत ही नहीं है। अपना आंसर तो वैसे भी 75,20,000 आ ही गया था। इधर भी इन्होंने लंबा कैलकुलेशन करके दिया, हम लोग ने शॉर्टर स्पैन में शॉर्टकट मार के आंसर निकाल लिया 40,80,000। अब ये एबीसी जरा थियरी पढ़ लेना नेक्स्ट। See, this is what I told you. Division X is working at full capacity of 5 lakhs. Of this, 2,40,000 will be supplied to Y, while the balance is sold in the external market. Marginal cost is 30. If they were sold externally, they would earn contribution of 16. Therefore, minimum transfer price for division X will be 30 plus 16, 46. अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो 46। खुशी, अभी समझा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आ रहा है? आई एम नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, आई एम टेकिंग अ डिसीजन अबाउट सम प्राइस। तो अगर मैं एक्सटर्नली नहीं बेचता तो मैं 16 रुपए का नुकसान कर रहा हूं, तो ये 16 रुपया मुझे ट्रांसफरी से लेना पड़ेगा। तो 30 रुपया मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट और 16 रुपया मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 46 तो मैं चार्ज करके रहूंगा। आई विल नॉट सेटल एट 30 नाउ, क्योंकि ट्रांसफरी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करते करते I will be losing contribution of 16 which I am earning from the outside market. तो 30 रुपया बनाने का, 16 रुपया गवाने का डिसीजन लेने के लिए अब मैं सोच रहा हूं कि 46 रुपीज के नीचे मैं ट्रांसफर कतई नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मार्केट में 47 रेट है, तो 46 और 47 का रेंज होगा। कंपनी को इसमें से एक चीज एडजस्ट करके देनी पड़ेगी। मैं 46 तक दे सकता हूं, उसके नीचे मैं नहीं आऊंगा इफ आई एम ए ट्रांसफरर। और ट्रांसफर ही बोलता है कि 47 में तो मुझे मार्केट में मिल रहा है, तेरे को क्यों दूं? तो यहाँ पे कंपनी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खुशी, आई थिंक यू आर क्लियर व्हेन टू अप्लाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हेन नॉट टू अप्लाई। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालने को बोला है तो डिसीजन नहीं लेनी, सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे मुझको डिसाइड करना है कि मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, मेरी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए, इसीलिए मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ी। समझा? अभी भी गुस्सा लगता है, मेरा आवाज बढ़ा रही है, बाकी कुछ नहीं। आई डोंट गेट एंग्री विद स्टूडेंट्स, रिलैक्स। आर यू ओके? हाँ, अभी भी गुस्सा है। चलो आगे बढ़ते। वो पॉइंट नंबर 3 एक बार सब लोग पढ़ लेना। हाँ, तो सुना थी क्या? 3 बार लिखा तो क्या हुआ? मैं भी तो बार बार एक्सप्लेन करता हूँ ना तुझे, ऐसा सुनाने का नहीं। 3 बार लिखा नहीं, ये लिखा, तो प्रॉब्लम क्या है मुझसे? चले, गो थ्रू दिस। पॉइंट नंबर 3 एक बार पढ़ लो।
You have a meeting at 10. So can we please close today at 9:50? You can leave for your meeting. No problem, Arnav. You can leave for your meeting. Whatever you miss, I'll explain it to you. Don't worry about it. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5. अर्णव, आप अपने टाइम से लॉग आउट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हार्डली कुछ होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया तो I'll explain it to you in the next lecture, so don't worry about it. Question number 5. A manufacturer has two divisions, Division A and Division B. Division B produces components that are used by both Division A as well as external customers. अच्छा, so Division A, Division B दोनों है. Division B produces components which are used by both Division A as well as external customer. मतलब इस बार B is transferor, इस बार B is transferor, A is transferee. Division A gets all its requirement of component from Division B. So B will transfer. ये जरा संभाल के, normally A to B होता है, इस बार B to A है. Annual production capacity of B is 1 lakh units. The division operates in full capacity. That means you are producing all 1 lakh units. No inventory. It sells component to external customer at 4,000 per unit, which is market price, and variable cost is 2750. Variable cost of production is 2750. So internally, it transfers components to Division A, factoring any opportunity cost in the form of lost sales. Total sales of Division B were 36 crores, and of which sales of external customers were 20 crores. Sales for external customers 20 crores. External customer को charge करते हो, एक्सटर्नल कस्टमर को चार्ज करते हो तुम लोग 4,000. तो दैट मीन्स 50,000 तुम लोग बेच रहे हो एक्सटर्नल कस्टमर को. बाकी बचा 16 करोड़. 16 crores you are earning from transfer. Are you understanding this? Okay. So आगे बढ़ते हैं. As a company's policy, demand from Division A has a priority over external customer. मतलब B को सबसे पहले ट्रांसफर करना ही होगा A को. उसके बाद जो बचेगा वो मार्केट में. This year, there was an additional demand for external customer for 18,000 components. Since Division B is operated fully at full capacity, the demand was not catered to. Analyze the sales in terms of rupees and units made by Division B, both external and internal. Recommend a transfer price range that would promote goal congruence. Okay. Discuss the effect of changes in external demand on the transfer price of the company, assuming that current policy continues. Think about it. Don't look into the solution. You think about read the question again and find out the answer for the first part. You can do it.
हाँ चलो. Arnav is saying 16 crore sales are made internally with 3,200 as transfer price, and 20 crore sales are made externally with 50,000. Okay. ठीक है प्रिया, that's fine. इतना तो समझ में आ ही गया होगा. 36 crores, 4,000 के रेट पे कमाया. सॉरी, 20 करोड़ एक्सटर्नल सेल्स 4,000 के बेसिस पे कमाया, मतलब 50,000. बाकी बचा हुआ 50,000 आइडियली शुड हैव गॉट ट्रांसफर्ड एट 2,750 बीइंग द वेरिएबल कॉस्ट. बट वो 36 - 20, 16 करोड़ में ट्रांसफर, 16 करोड़ अर्न किया है. दैट मीन्स यू मस्ट हैव चार्ज सम 3,200 और समथिंग. दैट्स फाइन. लेकिन सुनो, बात सुनो ध्यान से. आइडियली द ट्रांसफर शुड हैव बीन एट वेरिएबल कॉस्ट. आइडियली द ट्रांसफर शुड हैव बीन एट वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन क्या बोलता है? 18,000 का और डिमांड होता. अंडरस्टैंड, 50,000 एक्सटर्नल डिमांड है, वो फुलफिल कर दिया मैंने, तो बैलेंस 50,000 इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर. लेकिन और 18,000 अगर एक्सटर्नल डिमांड होता है, आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 50,000. आई कैन फुलफिल ओनली 32,000. 32,000 ट्रांसफर कर सकता हूं. 18,000 मार्केट में बेचने का मन करेगा, बिकॉज 4,000 मिलता है. सो कैन आई से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कैन आई से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो 50,000 के लिए 4,000 की सेलिंग प्राइस होगी. 18,000 के लिए भी ये 50,000 जो होगा ट्रांसफर करने में, उस 15,000 में से 18,000 के लिए माय ट्रांसफर प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस. क्योंकि 4,000 कमा सकता हूं मार्केट में बेच के. 2,750 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1,250 का कंट्रीब्यूशन में आई एम सैक्रिफाइसिंग. तो 50,000 के ट्रांसफर में से 18,000 सैक्रिफाइस करके, एक्सटर्नल सेल सैक्रिफाइस करके ला रहा हूं, तो वो दैट विल बी अ ट्रांसफर प्राइस. बाकी 32,000 कैन बी सोल्ड एट, कैन बी ट्रांसफर्ड एट वेरिएबल कॉस्ट, डजंट मैटर. बात समझ में आई? सो पहले दो निकल गए. ट्रांसफर प्राइस रेंज फॉर गोल्ड कॉन्ग्रुएंस, यार 2,750 वेरिएबल कॉस्ट है, 4,000 मार्केट प्राइस है. तो दिस इज अ रेंज फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज अ रेंज फॉर गोल्ड कॉन्ग्रुएंस. ये तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया था. एंड लास्ट पूछा है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड ऑन ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपनी अज्यूमिंग दैट करंट पॉलिसी कंटिन्यूज. जैसे जैसे एक्सटर्नल डिमांड बढ़ता जाएगा, अभी तो सिर्फ 18,000 मैंने मार्केट प्राइस पे भेज दिए. अगर डिमांड बढ़ता गया तो मोर एंड मोर यूनिट्स विल बी सैक्रिफाइस्ड, more and more units will be sold, will be transferred internally, more and more sacrifice will be made. तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स सेलिंग प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर होंगे, और कम यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर होंगे. आर यू गाइस क्लियर विथ इट? सबको समझ में आया है क्या बोला मैंने? अरे यस और नो? चलो इसका सॉल्यूशन पढ़ लो क्विकली. लंबे लंबी बातें दी है, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन इट क्विकली.
प्रियांक सेकंड में उन्होंने रेंज मांगा है. अब रेंज मतलब क्या होगा? इट्स अ प्राइस दैट कैन बी द रेंज व्हिच कैन बी म्यूचुअली अंडरस्टूड. अगर मेरे लिए आइडल कैपेसिटी है तो इफ आई एम अ ट्रांसफरर आई विल ट्रांसफर एट 2750. बराबर, मुझे चलेगा क्योंकि द ओनली कॉस्ट आई एम इनकरिंग इज वेरिएबल कॉस्ट. और तू अगर ट्रांसफर ही है तो यू विल बी नॉट रेडी टू पे मी मोर देन 4000 बिकॉज 4000 पे तुझे मार्केट में मिल रहा है. तो रेंज क्या हुआ? 2750 एंड 4000. बराबर. अगर आइडल कैपेसिटी नहीं है तो मुझे आउटसाइड सेल सेक्रीफाइस करके तुझे माल देना है, तो आई विल चार्ज यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फिर रेंज ही नहीं होगी, 4000 ही चार्ज करूंगा. समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्विकली खत्म कर लेते. GL Limited is a multi-product manufacturing concern functioning with the electrical division, functioning with 4 divisions. The electrical division of the company is producing many electrical products, including electrical switches. This division, functioning at the maximum capacity, sells switches to in the open market at 25 each. Boss, दो चीजें. Maximum capacity पे काम कर रहे हो, that means there is no idle capacity and market price is 25. Variable cost is 16. Variable cost is 16. Household division, another division of GL Limited, is functioning at 70% capacity, asked electrical division to supply 5000 switches per month at the rate of 18. सबसे पहले, are you interested in supplying at 18? Are you interested in supplying at 18? No, because your outside sales will be sacrificed. Because we are currently selling in open market for 25. ठीक है. Components purchased from outside. ये बंदा ये बंदा 25 पर यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट्स मार्केट से खरीद रहा है, इसलिए 50 रुपया दे रहा है. एंड दिस इज द अदर वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, 58 पर यूनिट. सो 58 पर यूनिट अदर वेरिएबल कॉस्ट, 50 रुपीज पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, 108 टोटल हो गई. उसमें उसने 21 फिक्स्ड ओवरहेड ऐड किया. इस फिक्स्ड ओवरहेड का कोई मतलब नहीं है. दिस इज पर यूनिट कॉस्ट. इट इज एन एब्जॉर्प्शन रेट. And if it is an absorption rate, is a rate at which you recover the cost. You don't incur the cost. So it is irrelevant from the decision making perspective. अगर प्रॉफिट पूछा तो फिक्स कॉस्ट की टोटल अमाउंट माइनस कर देंगे. If they ask me to calculate profit, I will consider fixed cost. If they are not asking me to calculate profit, they are just asking me to take some decision. 21 per unit is not the cost which is incurred by me. 21 per unit is a cost which is the rate at which I'm recovering the cost. It has got no say in decision making whatsoever. The household division is marketing lamps at 130 each. With every small margin, with a very small margin, as it is doing business in a competitive environment. Any increase in price made by division will push out the division from the market. मतलब selling price बढ़ा नहीं सकते. Therefore, division cannot pay anything more to switches if they ask for electrical division. Further, the manager of the division informed that it is very much essential to keep the market share of the night lamps by household division to retain the experienced workers in the division. मतलब तुम लोग लेबर वगैरह भी कम नहीं कर सकते. The company is using return on investment as a for divisional performances and also marginal costing approach for decision making. मतलब एक और चीज, एक और hint that fixed cost is not to be considered. Would you recommend the supply of switches to household division by electrical division at 18? Substantiate your recommendation with suitable answers. क्या लगता है?
The answer is no, because it will reduce the profit of transferor division. The answer is no, because it will reduce the profit of transferor division. Correct? Analyze whether it would be beneficial for the company as a whole. The supply of switches. कंपनी पर्सपेक्टिव से सोच के देखो. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये 36 में बच जाएगा. सो वेरिएबल कॉस्ट गोज डाउन बाय 14. Contribution goes up by 14. तो नेट इफेक्ट निकालो. डू इट ऑन कैलसी. अरे मिला कि नहीं? हिंट तो दिया मैंने. 25 के बदले 18 में ट्रांसफर करोगे. ट्रांसफर डिवीजन का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन गोज डाउन बाय 7. एकदम ओरल कैलकुलेशन है रे. 25 के बदले यू विल ट्रांसफर एट 18, योर कंट्रीब्यूशन गोज डाउन बाय 7. लेकिन ट्रांसफरी डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन गोज अप बाय 14. स्टिल देयर इज अ नेट सेविंग ऑफ 7. कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग बाय 7. बेनिफिशियल है. ओरल कैलकुलेशन टकाटक करने का. Third one, do you feel that divisional manager should accept the internal division transfer in the principal? What should be the range of transfer price? Again, variable cost कितनी थी? Variable cost कितनी थी? ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 16. लेकिन मैं 16 पे नहीं दे सकता बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग, आई एम ऑलरेडी एट फुल कैपेसिटी और मेरा पूरा 50 का 50,000 मार्केट में बिक रहा है. मैं 25 रुपए के नीचे नहीं. मैं 25 रुपए के नीचे नहीं आऊंगा. अच्छा, रही बात हाउस होल्ड डिवीजन की, तो मेरी बात ध्यान से सुनना. 130 में उसको बेचना है. 130 में से 58, 130 में से 58, एक सौ तीस में से 58 जा रहा है उसका वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर. नहीं, नॉट ओनली 50, इट्स नॉट 58. स्विच इफ परचेज इंटरनली 18, तो ये 36 हो जाएगा. अच्छा, ये 40 रुपया माइनस करता हूं मैं. 40 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है. 90 पे आया. अब बाहर से खरीदूंगा तो 50 रुपए तो देना ही पड़ेगा. बाहर से खरीदूंगा तो 50 रुपए तो देना ही पड़ेगा. वाई टू वर आर डूइंग, मतलब क्या लिखा रे? वाई टू वी आर डूइंग, डिडंट गेट इट. मार्केट से खरीदा तो 50 रुपया पड़ता है. मार्केट से खरीदा तो 50 रुपया पड़ता है. मार्केट प्राइस 25 रुपया है, मतलब 2 यूनिट्स खरीदने पड़ते हैं.
Arnav, if you are buying it from the market, if you are buying it from the market at 50, remember you are spending 50 at the rate of 25. तो 2 यूनिट्स है ना. समझा कि नहीं आ रहा हूँ. तो 130 का माल है. 130 में फिनिश गुड्स जाएगा, जिसमें से 40 अदर वेरिएबल कॉस्ट है, तो 90 बाकी की कॉस्ट होगी. 90 बाकी की कॉस्ट होगी. मुझे रेंज निकालनी है, रेंज. बोलो, ज्यादा क्लियर है. चलो एक काम करते, कल सॉल्व कर लेते बाकी का. आधे लोग तो पैकिंग वैकिंग पैकिंग शैकिंग में लगे, कुछ आंसर्स नहीं आ रही है. मैं कल सॉल्व कर दूंगा ये क्वेश्चन वापस. विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन टुमारो.